لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم یرزقون. عدداران سید الشہداء، سوگواران امام مظلوم کربلا، ہم اور آپ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پرسہ دینے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور خاص طریقے سے ہمارے اور آپ کے کائنات کا امام بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا. آج کی یہ رات خود امام زمانہ کی یتیمی کی رات ہے. ہمیں اور آپ کو دل کھول کے پرسہ دینا ہے. عزیزو، میں یہی سوچ رہا ہوں کہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، اور آنے والا مجمع نکلنے والی شبیہوں کا منتظر ہے. اس تقریر کے بعد آپ بلا فاصلہ نکلنے والی شبیہوں کی آپ زیارت فرمائیں گے اور زیارت کریں گے. حق ماتم اور حق گریہ آپ ادا کریے. دل کھول کے ماتم کیجئے، دل کھول کے آپ گریہ کیجئے، اور شہزادی عالم کو ان کے لال کا پرسہ دیجئے. خاص طریقے سے آج کی رات میں اتنا جانتا ہوں کہ کائنات کے امام کو ایک لمحہ بھی سکون نہیں ہے. اس لیے سکون نہیں ہے کہ آج کی رات ہمارے اور آپ کے آخری امام کی یتیمی کی رات ہے. کل ہمارا اور آپ کا مولا یتیم ہو جائے گا. پوری کائنات میں، دنیا شیعت میں آپ نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو آج کی رات دنیا شیعت میں ہر مقام پہ امام کا غم منایا جا رہا ہے. شب جمعہ بھی ہے. بصرہ کے افراد، کاظمین کے افراد، کربلا سے افراد، نجف سے افراد چل کے سامرا پہنچے ہیں، اور وہاں پہنچ کر اپنے آخری امام کو پرسہ بھی دے رہے ہیں اور ان کے بابا کا غم بھی منا رہے ہیں. شب جمعہ ہے، وہاں پہ اتنا ازدحام ہے کہ اس وقت تل پھینکنے کی جگہ نہیں ہے. الحمدللہ ہماری زیارت گاہیں آزاد ہو چکی ہیں. جو دو سال سے کورونا جیسی مصیبت میں سارے افراد گرفتار تھے، مولا حسین کے صدقے میں آج ساری زیارت گاہیں آزاد ہو چکی ہیں. چاہنے والے افراد جا رہے ہیں اور اپنے ائمہ کے روضوں کی زیارت کر کے واپس آ رہے ہیں. کیوں نہ ایسا ہو عزیزو؟ اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا امام جس نے دین کے لیے، جس نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دیا کہ قیامت تک کے لیے اللہ کے دین کو محفوظ کر دیا، شاید پروردگار عالم نے حسین کو یہ انعامات سے نوازا ہو. حسین گھبرانا نہیں. اگر آپ نے ہمارے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے تو قیامت آ جائے گی. قیامت تک ہم آپ کے نام کو باقی رکھیں گے. سلاطین بنی امیہ، سلاطین بنی عباس، اپنے اپنے اعتبار سے ظالم بادشاہ، یہ سلاطین گزرے ہیں، کتنا انہوں نے پابندیاں لگائیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ذکر حسین کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک باقی رہے گا. عزیزوں، یہاں پہ جوش ملی آبادی نے بڑا پیارا شعر کہا ہے جو سب کو یاد ہے. میں دہرائے دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں مکمل مصائب آپ کے سامنے پڑھ کے میں اس کے بعد پھر شبیہوں کو سلسلہ انشاءاللہ برآمد ہوگا اور سلسلہ جاری رہے گا.
जोश मलियाबादी ने बड़ा प्यारा शेर कहा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। कब ये कौम पुकारेगी हुसैन हमारे हैं? जितना ज्यादा मारिफत हुसैन इंसान को होती जाएगी, उतने ही इंसान कहता जाएगा हुसैन हमारे हैं, हुसैन हमारे हैं, हुसैन हमारे हैं। अब आज की दुनिया में ये कह देना कि हुसैन शियों के हैं, करबला शियों की है, ये हमारे ऊपर बउनवाने तंज जुमला कहा जा रहा है कि करबला शियों की है, हुसैन शियों के हैं। नहीं अजीजों, ऐसी बात नहीं है, बल्कि तासुब की ऐनक को निकाल के देखो और तासुब की ऐनक को निकाल के पढ़ो, तब करबला तुम्हें समझ में आएगी करबला क्या है। लिहाजा तासुब की ऐनक को निकाल के मुताला करो करबला का। करबला दर्स बंदगी देती है, करबला दर्स इत्तिहाद देती है, करबला दर्स अमल देती है, करबला दर्स इबादत देती है, करबला दर्स तौहीद देती है, करबला दर्स फसाहत देती है, करबला दर्स बलागत देती है, करबला दर्स शुजाअत देती है, करबला दर्स सखावत देती है, करबला दर्स इमामत देती है, करबला दर्स क़यामत देती है। करबला को बगौर पढ़ो तो करबला समझ में आएगी, वरना तासुब की ऐनक को लगा के करबला का मुताला करोगे तो करबला कभी भी समझ में नहीं आने वाली है। अब ये तुम्हारा जुमला कहना कि करबला शियों की है, हुसैन शियों के हैं, गलत है ये जुमला अजीजों। नहीं, बल्कि जुमला मैं कह रहा हूं, करबला सबकी है, हुसैन सबके हैं। करबला सबकी है, हुसैन सबके हैं। शायर ने बड़ा प्यारा शेर कहा, इस मंजिल पे पहुंचने के बाद शायर ने कहा कि हमसे न ये कहो कि तुम्हारी है करबला, हमसे न ये कहो कि तुम्हारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। करबला दर्से हक देती है, करबला हक का पैगाम देती है, करबला को सही पढ़ो तो सही, वरना करबला कभी समझ में नहीं आएगी। आओ करबला से मुतमस्सिक रहने वाले अफराद, आओ करबला तक हमारे साथ चलो कि हुसैन ने सब कुछ करबला में अपना लुटा दिया और लुटाने के बाद दीने शरीयत मुस्तफा को बचा के कयामत तक के लिए महफूज कर दिया। शायद यही वजह थी कि 23 बरस तक जिस दीन को अल्लाह के नबी ने बचा के परवान चढ़ाया था, कंप्लीट किया था, उस दीन को 50 साल के बाद उस दीन का ठेकेदार यजीद बन गया था। 50 साल के बाद हुसैन ने मदीने की सरजमीन से आवाज दिया और आवाज देने के बाद जुमला कहा, यजीद अगर तू समझता है कि शरीयत मुस्तफा लावारिस हो गई है तो खबरदार ये ना सोचना, अभी भी हुसैन रसूल का वारिस जिंदा है। लिहाजा दीन मुस्तफा को बचाने के लिए हुसैन करबला तक आ गए। जब हुसैन करबला में आए तो इस करबला में पहुंचने के बाद दीने मोहम्मद मुस्तफा को बचाने के लिए हुसैन और ज़ैनब ने वो कोशिशें की है कि दीन को बचाने के लिए 23 साल 23 महीने 23 हफ्ते 23 घंटे नहीं लगाए हैं। सुबह आशूरा हुसैन ने इस दीन को बचाने का काम शुरू किया बहनों भाई ने, और असर आशूर दीन मुस्तफा को मुकम्मल कर दिया। और उसके बाद उरूज पे पहुंचाने के बाद हुसैन ने कहा, नाना अगर कयामत तक के लिए मैं आपके दीन को महफूज न कर दूं तो हुसैन और ज़ैनब न कहिएगा। लिहाजा कयामत तक के लिए दीन मुस्तफा को दवाम बख्शा, जिंदगी बख्शी। अब कोई यजीद किसी जमाने में इस दीन को मिटा नहीं सकता। हुसैन का बचाया हुआ दीन है, हुसैन का बचाया हुआ इस्लाम है, ज़ैनब का बचाया हुआ दीन है, ज़ैनब की बचाए हुई ज़ैनब का ये इस्लाम है। हुसैन ने कुर्बानी पेश किया, उस कुर्बानी के मकसद की तर्जुमान का नाम ज़ैनब है, और मोहम्मद की मादर का नाम ज़ैनब है, अली की बेटी का नाम ज़ैनब है, अबू तालिब की बहू का नाम ज़ैनब है, अब्बास जैसे बरादर की बहन का नाम ज़ैनब है, हुसैन जैसे शेर दिल
की बहन का नाम ज़ैनब है। अजीजों, करबला में बड़ा एतमाद था, बड़ा भरोसा था। मेरी चादर का वारिस जिंदा है जिसका नाम अब्बास है। जब तक अब्बास जिंदा है हमारी चादरें महफूज है। हाँ अज़ादारों, अय्याम अदा की आखिरी रातें हैं, हम और आप मातम करने के लिए जमा हुए हैं। मैं आपके ज़हनों को हमवार कर चुका, अब यहाँ से आप रोने के लिए तैयार हो जाइए। मैं मसाइब में कोई कमी नहीं करूँगा, मसाइब को उसी अंदाज से पेश करूँगा जो पेश करने का हक है। आप गिरिया करने में कोताही न कीजिएगा, इसलिए कि अय्याम अदा की आखिरी रातें हैं। अगर हम इस वक्त न रोए और शहजादी को पुरसा न दिया तो फिर कब रोएंगे। अभी आपने शेर सुना था ना, बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम है, जो चल बसे तो फिर अपना सलाम आखिर है। ये सोच के रो कि नहीं मालूम कौन अगले बरस जिंदा रहता है, किसकी हयात वफा करती है, किसकी हयात वफा नहीं करती है। हुसैन के अज़ादारों, हुसैन के मातमदारों, अब्बास अलमदार का अलम उठाने वालों, मौला हुसैन का दुलजना सवारने वालों, मौला हुसैन का ताजिया अपने कांधों पे उठाने वालों, ये सोच के रो कि आज की रात अय्याम अज़ा की आखिरी रात है। आज की रात यहाँ पे मैं यकीन से कह रहा हूँ कायनात का इमाम पुरसा लेने के लिए आया है। वो पूरी कायनात में दौड़ दौड़ के अपने बाबा का पुरसा ले रहा है और अपने जद्दे अमजद का पुरसा ले रहा है। वो इमाम यहाँ खुद मौजूद है और एक माँ है जो जन्नतुल बकी की उजड़ी हुई कब्र से यहाँ आई है। वो भी जो आई है तो तन्हा नहीं आई है। जब मदीने से चली जन्नतुल बकी से तो पहले शाम आई है। शाम में आने के बाद अपनी बेटी ज़ैनब कुबरा को लिया, फिर वहां से जिंदान शाम गई, वहां से अपनी पोती सकीना को लिया और लेके यहाँ तक आई है। ए रोने वालों, जब इतना बड़ा मजमा मकातिल ने लिखा, जब इतना बड़ा मजमा देख के एक मर्तबा हुसैन की बेटी अब्बास की भतीजी सकीना कहती, फूफी अम्मा, ए फूफी अम्मा, अगर ये चाहने वाले करबला में होते तो मेरा बाबा तशना लब न मारा जाता। जज़ाकल्लाह, खुदा आप किसी को मिला लाए सिवाय गम हुसैन में। आवाज गिरिया बुलंद हो गई, आप रोइए, पुरसा दीजिए। वो भी अम्मा, अगर ये रोने वाले मेरे बाबा के अज़ादार कर करबला में होते तो मेरा बाबा तशना लब न मारा जाता, 3 दिन का भूखा प्यासा न मारा जाता। वो भी अम्मा, अगर ये अफराज ये मेरे बाबा के चाहने वाले करबला में होते तो मेरे चचा का बाजू काटा न जाता। अगर ये चाहने वाले करबला में होते तो मेरे भैया अली अकबर के सीने में बर्छी न लगती, और अगर यही चाहने वाले करबला में होते तो मेरा शशमाहा मुजाहिद अली असगर तीरे हुरमुला का निशाना न बनता। जज़ाकल्लाह, ये आखिरी रात है, हक के गिरिया अदा हो रहा है, खूब पुरसा दे रहे हो। ए बीबी ज़हरा, हमारे पास कुछ नहीं है, ये आंसुओं के नजराने हैं, बीबी इसे कबूल कर लीजिए। बीबी, अगर कोई कोताहियां हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। हम आपके मातम अदा न कर सके, हम आपके गिरिया अदा न कर सके, ये आंसुओं के नजराने हैं, बीबी इसे कबूल कर लीजिएगा। ए अदादारों, करबला में आलम यह है कि मकातिल ने लिखा, हर बीबी के ऊपर जब भी कोई मसाइब पड़े हैं तो हर बीबी ने अब्बास अलमदार को याद किया है। जुमला सुनो अजीजों, उसके बाद अब ये मेरी तकरीर तमाम है, 5-7 मिनट तकरीर मेरी तमाम है। मैंने मक्तल के जुमले देखे हैं, जब भी किसी बीबी को कोई अजियत पहुंची है, हर बीबी ने तलब के एक जुमला कहा है, अब्बास, अब्बास, ए अब्बास, कल आपके भरोसे पे हम चैन से सो रहे थे। ए अब्बास, आपकी शहादत के बाद शाम गरीबा में ख़याम जलाए गए, चादरें छीन ली गई, हम बेपर्दा हो गए। अज़ादारों, करबला से लेकर कूफा तक, कूफे से लेकर शाम तक जब जब भी
किसी ने बीमार करबला से कोई सवाल किया है, जानने वाले ने पूछा है, तो उसे जब इत्तला मिली करबला में सब मारे गए, तो उसने एक सवाल किया है, ए सैयद सज्जाद, क्या अब्बास ने साथ छोड़ दिया? जज़ाकल्लाह, खुदा आपको किसी का मन लाए सिवाय गम हुसैन में। क्या अब्बास ने साथ छोड़ दिया? मेरा चौथा इमाम तड़प पे कहता है, नहीं नहीं, मेरे चचा ने साथ दिया है, मेरा चचा मौजूद था, मेरे चचा के जब शाने काट दिए गए तब मेरा बाबा मारा गया है। अजीजों, आप जानते हो हर पूछने वाले ने यही पूछा है। यहाँ तक कि तारीख का फिक्रा मकातिब ने लिखा, यूं करबला से उजला हुआ काफिला चला, जैसे किसी का काफिला सालार मर गया, ऊंटों से गिरते जाते थे बच्चे भी जा बजा, आई सरे हुसैन से बेसाख्ता सदा, किस हाल में हो बच्ची पर मेरी नजर नहीं ज़ैनब, सकीना गिर गई तुमको खबर नहीं, सकीना गिर गई तुमको खबर नहीं। ये काफिला मंदिल में मंदिल करबला से कूफा चला, कूफे से भी शाम नहीं पहुंचा है अजीजों। और आलम यह है अभी बाजार शाम में भी नहीं है, मजमा है, इज्तिहाम है, रसूल बैठ सहाबी है। मैंने तकरीर को तमाम कर दिया। कयामत खेत मनाजिर अभी आप देखेंगे, वाकयात करबला का खूनी मंजर शबीहों की शक्ल में आप देखेंगे। जितना हो सके गिरिया कीजिए, जितना हो सके आप आंसू बहाइए। आज की रात रोने की रात है, आज की रात गिरिया करने की रात है, आज की रात पुरसा देने की रात है, आज की रात खास तरीके से इमाम ज़माना को पुरसा देने की रात है। मेरा इमाम रात भर सोया नहीं था। क्यों? इसलिए कि बाबा को पहली रबीउल अव्वल को जहर दिया गया, 8 रबीउल अव्वल को बाबा दुनिया से चले गए। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको किसी को मन लाए सिवाय गम हुसैन में। 7 दिन तक मेरा इमाम बिस्तर पे तड़पता रहा, जहर खा के तड़पता रहा। ये कायनात का आखिरी इमाम जिसका सिन 5 साल का है, अपने बाबा पे गिरिया करता रहा। सुबह होगी मेरा बाबा रुखसत हो जाएगा। सामरा है, तन्हाई है, घर वाले मदीने में हैं, मेरा मौला अकेला है, मेरा 11वां इमाम अकेला है, सरजमीन सामरा है, जिंदान है। उस जिंदान में इमाम इस तरीके से रहा करते थे, अपनी जिंदगी से इमाम घबरा गए थे। ऐसा तारीकी जिंदान था जिसमें रात और दिन का पता न चलता था। अज़ादारो, ए अज़ादारो, बस ये काफिला शाम की मंदिर में पहुंचने वाला था। एक मर्तबा तारीख ने उसका नाम लिखा, ज़ैद इब्न अरकम है, सहाबी रसूल है। उसको पता चल गया कि काफिला करबला से लुट के आ रहा है। जो काफिला लुट के आ रहा है वो काफिला इतरते अहले बैत है, रसूल का घराना है जो लुट के आ रहा है। बीबियां आ रही हैं, सब करबला में मार दिए गए हैं। मकातिब ने लिखा है कि ज़ैद इब्न अरकम ठहर गया, कहा अब इमाम सज्जाद से रुक के पुरसा दे के तब मैं यहां से रसूलुल्लाह की ज़ियारत करने के लिए जाऊंगा मदीने। ये कह के रुका। उसके बाद थोड़ी देर में देखा, बरदारों, मेरी तकरीर तमाम हो गई, काफिला आ रहा है, आगे आगे सरहाए शुहदा है, पहचान न पाया। जब देखा एक बीमार है जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में खारदार तोक है, कमर में लंगर है, धीरे से पीछे पीछे आया और आने के बाद अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, ए रसूल के नवासे, आप पर हमारा सलाम हो। इमाम ने हथकड़ियों वाले हाथों को उठाया,
جواب سلام دیا. کہا کون ہے جو مجھے لائق سلام سمجھ رہا ہے؟ میں کربلا سے شام آ گیا, مجھے کسی نے سلام نہیں کیا. کون ہے؟ تو پتہ یہ چلا نانا کا صحابی, میں زید ابن ارقم ہوں. کہا خیریت تو ہے. کہا مولا یہ کیا ہو گیا کربلا میں؟ کہا اتنا جان لو سب مارے گئے, زہرا کا باغ اجڑ گیا, ہرا بھرا باغ کاٹ دیا گیا, ہمیں اسیر کیا گیا. کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام بے مکنو چادر بیویوں کو لایا گیا ہے. ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار توق ہے, کمر میں لنگر ہے. کہا مولا نیزوں پہ سر کس کے ہیں؟ کہا یہ میرے بابا کا سر ہے, یہ میرے بھیا علی اکبر کا سر ہے, یہ اونو محمد کا سر ہے. اس کے بعد سارے سروں کا شمار کیا. اب طلب پہ ایک مرتبہ عجیب جملہ نانا کو صحابی نے جملہ کہا کہ سید سجاد, سید سجاد سب کا سر دیکھ رہا ہوں, عباس کا سر نظر نہیں آتا. اے سید سجاد, کیا عباس نے وفا نہیں کیا؟ کیا انہوں نے ساتھ نہیں دیا؟ مکاتب نے لکھا ہے میرا چوتھا امام تڑپنے لگا. کہا اے نانا کے صحابی تو نے کیا سمجھ کے پوچھا ہے؟ امام نے جب کہا نا تو کہا میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا پوچھنے کا, مولا معاف کیجئے گا, بس میرا مقصد یہ تھا سب کے سر نو کے نیزہ پہ دکھائی دیے, عباس کا سر نظر نہیں آیا تو میں نے تڑپ کے پوچھ لیا. بس امام نے کہا اے میرے نانا کے صحابی, وہ دیکھو سفید گولے گردن میں جو سر لٹک رہا ہے, ہاذا راس امی العباس, یہ میرے چچا عباس کا سر ہے. بس تقریر تمام ہو گئی. چوتھے امام نے کہا نہ تو سن سکتا ہے نہ میں بتا سکتا ہوں. اس صحابی نے پوچھا مولا سب کا سرنوں کے نیزہ پہ آ گیا, آخر چچا عباس کا سرنوں کے نیزہ پہ کیوں نہیں آیا؟ کہا نہ میں بتا سکتا ہوں نہ تو سن سکتا ہے. چل میرے چچا کے سر کے پاس چل پوچھتے ہیں, میرے چچا خود بتائیں گے. تقریر تمام ہو گئی, دونوں قریب آئے. امام سجاد نے کہا چچا یہ نانا کا صحابی پوچھ رہا ہے سب کا سرنوں کے نیزہ پہ بلند ہوا, آپ کا سرنوں کے نیزہ پہ کیوں نہیں آیا؟ چچا جواب دیجئے. ایک مرتبہ عباس کے لب ہلے, آواز آئی بیٹا سجا. جب میرے سر کو نو کے نیزہ پہ رکھا گیا تو میں نے دیکھا کہ میری بہنیں بیردہ ہیں, میری زینب بیردہ, میری کلثوم بیردہ. بلوائے عام میں آ گئی. دشمنوں نے 3 بار میرے سر کو رکھا, مگر جب میں نے اپنی بہنوں کو بیردہ دیکھا تو میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا, اور اس کے بعد میرا سرنوں کے نیزہ پہ نہ ٹکا. پھر انہوں نے میرے سر کو گولے گردن میں ڈال دیا. میرا سر کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام تک گولے کی ٹھوکروں میں رہا. اے بیٹا سجا, میں کیسے اپنی بہن کو بیردہ دیکھوں؟ میں نے چادر کی ضمانت لیا تھا, پردے کی ضمانت لیا تھا. جب تک زندہ ہوں, عباس زندہ ہے, تب تک میری بہن کا سر کھلے گا نہیں. لیکن میری شہادت کے بعد میری بہن بیردہ ہو گئی. ارے کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, شام سے بازار شام, بلوے عام میں بے مکنو چادر پھرایا جا رہا ہے. شامیاں بستند بازو, زینب و کلثوم را, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.